प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर लिया था। सो आज हमें अल्काइल और अराइल अराइड स्टार्ट करना है, ठीक है। सो अल्काइल और अराइल अराइड में कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं हाइड्रोकार्बन में, और कुछ नए रिएक्शंस होंगे तो उसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। So as far we know, we can categorize alkyl halide or aryl halide into three categories. उनमें 1 degree, 2 degree and 3 degree aryl halide या alkyl halide can exist, right? Where R is either alkyl group or aryl group. Aryl group मतलब benzene के derivatives या benzene, ठीक है। So if we see the properties based on the bonding of aryl halide or alkyl halide, the CX bond length increases as we move down from fluorine to iodine. Right, so this is basically C and X bond, where X is halogen. So similarly, if the bond length is increasing, the bond strength will decrease because they are inversely related. So we know the relation between bond length and bond strength. Bond length is inversely proportional to bond energy or bond strength. So mostly the RX have low solubility in water and are miscible with each other, ठीक है। पानी में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खुद के जैसे कोई और अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड है तो उनसे जाकर के मिक्स हो सकता है, right? And with other relatively non-polar solvents, so they are basically dissolving in a non-polar solvents like CCl4 or either CH2Cl2, right? So इसके general naming के लिए तो we know we can follow IUPAC rules, but apart from that there are two special cases where we can name it as in alkynyl halide and phenyl halide or aryl halide. Alright, so this is the allylic position जहाँ पे आपका halogen group लगा हुआ है. So there are broadly two categories of reactions which it show. One is nucleophilic substitution reaction and another one is your elimination reaction. ठीक है, तो वो एक बार one by one we can start with this type of reactions. Okay, so first we are seeing the nucleophilic substitution reaction, जहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल को मैं Nu डॉट डॉट करके दिखाऊंगा, ठीक है। So Lg is the leaving group, and basically if we talk about the leaving group, then leaving group is bad base, right? So leaving group tendency is direct inversely proportional to the basic strength. राइट, हम इसके बारे में स्पेसिफिकली एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करेंगे। सो अगर ये रिएक्शन हम लोग देखें कि अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस कैसे होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सो जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो दैट न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू रिप्लेस दिस लिविंग ग्रुप and we'll get R, Nu and Lg. So most of the time the leaving groups are halogen groups, chlorine, bromine and iodine. Fluorine इसमें नहीं लेते because we know कि fluorine का जो reaction है that is very difficult to control. हम लोगों ने ये halogenation में भी देखा था of the alkanes में कि fluorination हम लोग नहीं करा पाते हैं, right? Because the reaction is very fast. Alright, so on that basis we can say कि जो आपका living group होगा that can be either halogen group or some specific groups which are bad base. Alright, so ये हम tendency के बारे में बात कर रहे हैं. Anyway, let's start with this nucleophiles and living group का जो भी definition है वो. So nucleophiles are nothing but they are any negative charge ions or uncharged molecules which will have a shared pair of electrons.
right? And it can be donated to carbon. So nucleophilicity is nothing but it is the tendency to form sigma bond with the carbon. All right. So अब न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जब भी बात करें तो वी कैन से कि न्यूक्लियोफाइल्स generally form sigma bond with carbon. And this phenomena of the formation of the sigma bond with the carbon is known as nucleophilicity. So nucleophilicity is what? Nucleophilicity is the tendency to form sigma bond with the carbon. Right? जैसे हम बेसिक या फिर बेस का बेसिक स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं, एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स का न्यूक्लियोफिलिसिटी डिफाइन कर सकते हैं. राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दस न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑलवेज लुईस बेस, राइट, विच मे बी a negative charge or neutral. Negative charge भी हो सकता है और neutral भी हो सकता है, but basically it should be Lewis bases. So an argument can be made that all nucleophiles are Lewis base, but all Lewis bases are not good nucleophiles. I'm talking about the good nucleophiles. I'm not talking about the just nucleophiles, because nucleophiles का definition अगर आप देखो तो इसमें ये कहा गया है कि ऐसे स्पीसीज जिस पे नेगेटिव चार्ज या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, राइट. सो नॉर्मली व्हाट हैज बीन सीन इज कि जो आपका लुईस बेस है, दैट लुईस बेस आल्सो डज कंटेन लोन पेयर्स, right, but it is not necessary that they are going to be nucleophiles, right. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अल्काइल हैलाइड सॉरी हमने हाइड्रोकार्बन में भी देखा था कि अगर आपका बेस जो है थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड, सो टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड जो है आपका रिएक्शन में नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम नहीं करेगा, बट रादर देन इट विल एक्ट एज अ बेस. Okay, so that is what we are talking about कि all nucleophiles are Lewis base, but all Lewis bases are not nucleophiles. So this is ये जो टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड है, टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना इट्स डिफिकल्ट, राइट. नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल OH माइनस और हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड ले रहे हैं, वी हैव RX. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द अल्काइल हैलाइड. अराइल हैलाइड को सेपरेटली पढ़ेंगे. सो यहाँ पे हम लोग अल्काइल हैलाइड मान करके चल रहे हैं, ठीक है. तो दिस हैलोजन ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय OH बिकॉज यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, ठीक है. And similarly this work can also be done in the presence of H2O. H2O can be acting as a neutral nucleophile, and similarly it will be replacing this halogen group. Halogen group replace करने के बाद it will form ROH2 plus. See, ठीक है, तो initially it will be formed as a positive charge ion, but later on it will deprotonate one H plus deprotonate होगा और H plus deprotonate होने के बाद we can get neutral product. Alright, so a deprotonation step is always required to complete the reaction when the nucleophile is a neutral atom, ठीक है. so ये step तो होना ही पड़ेगा because यहाँ पे either ROH2 plus रहना या फिर ROH रहना, ये ROH is more stable, right, because इसमें कोई चार्ज नहीं है. स्टेबिलिटी की बात भी नहीं है, rather on the molecules will try to exist in neutral state, वो उनके लिए ज़्यादा better है, ठीक है. So there are certain examples of the charged nucleophiles, like for example H minus, OH minus, carbon ion, any carbon ion, C minus, Cl minus, ठीक है. सिमिलरली ऑन दैट बेसिस आप इसमें OR माइनस भी ले सकते हो एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है.
Then there is a second category of nucleophiles, which is neutral nucleophiles. For example, water, ROH, ether, amines, 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amines, right? And then where NH2, NH2, H2S, RHS, R2S, right? Hydrocarbon containing double bond or triple bond, alkynes and benzenes. राइट सो इसमें हम लोगों ने जैसे बेंजीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा है. अभी हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देखा, बट हाँ अगर इलेक्ट्रोफिलिक हो सकता है तो फिर न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है. जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे जो कि दैट इज हाईली डीएक्टिवेटिंग, सो दैट हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप is going to decrease electron density at ortho and para position, लेकिन मेटा पोजीशन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा. So when nucleophile is going to attack, it is going to attack at that position जहाँ पे उसे न्यूक्लियस मिले. So the nucleophiles is going to attack at the ortho and para position, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है that is going to attack at the meta position. So normally हम लोग जो है इलेक्ट्रोफाइल्स के बेसिस पे ही ऑर्थो डायरेक्टिंग या फिर पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं या फिर मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं. नॉर्मली हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स के बेसिस पे नहीं बोलते. ठीक है. सो द थर्ड कैटेगरी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स इज एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल. एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल में देयर विल बी मोर देन वन एटम which is capable of donating. I am saying that it is capable of donating. It is not going to donate at the same time. Right? For example, Cn minus. तो Cn माइनस में C पे नेगेटिव और N पे लोन पेयर है. सो एट अ टाइम आइदर कार्बन डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा, लेकिन बोथ ऑफ देम हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ डोनेटिंग द लोन पेयर. So that is what is the idea behind the ambient nucleophile, right? So as the definition suggests, कि species which have two nucleophilic centers, one due to lone pair electrons and other due to negative charge, are known as ambient nucleophile. जैसे NO2 माइनस, NO2 माइनस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, सो ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ वी सी कि RX का रिएक्शन कराते हैं विथ KCl. ठीक है. सो इट प्रोड्यूसेस RCl, साइनाइड बनता है. लेकिन यही RX का अगर हम लोग रिएक्शन करा दें AgCN से, ठीक है, सो इट विल फॉर्म RNC. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन KCN एंड AgCN? KCN और AgCN में डिफरेंस ये है कि KCN आपका एक आयनिक सॉल्ट है and AgCN is a covalent salt. Alright, so KCN will be existing in the form of K plus and Cn minus. तो Cn minus में आप ये देख सकते हो कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है and कार्बन is going to donate या फिर is going to attack at the alkyl group of alkyl halide. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो है C आकर के अटैक करेगा और ये X will leave. X is leaving, that's why we say कि halogens are leaving group. But in AgCN, Ag और Cn के बीच का जो bond है that is covalent. So there must be overlapping of the orbitals, right? So यहाँ पे बस नाइट्रोजन का लोन पेयर ही बचा हुआ है which can act. ठीक है. तो AgCN में Cn जाएगा और ये जाकर के R को अटैक करेगा and X minus will leave. Similarly, this case can be also seen with KNO2 and AgNO2. ठीक है. तो जब हम लोग KNO2 लेंगे तो we can get RNO2 जहां से नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, and if we take AgNO2 then वो फिर RON डबल बॉन्ड O हो जाएगा. ठीक है. So
मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि if we have Rx plus KNO2 is RNO2, और अगर हम लोग Rx ले रहे हैं with AgNO2 तो ये RONO बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम एक्सप्लेनेशन है कि KNO2 इज आयनिक सॉल्ट एंड AgNO2 इज अ कोवेलेंट सॉल्ट। ठीक है, तो कोवेलेंट सॉल्ट होगा तो वो ऑलरेडी आपका जो है नाइट्रोजन से बॉन्डिंग बना चुका होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखा है, जैसे कोरियोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा था R2CuLi, या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोगों ने देखा था RMgX, या सिंपली RLi। इनमें भी जो एग्जिस्टेंस है अल्काइल्स ग्रुप का वो एग्जिस्टेंस है एज अ R माइनस। ठीक है, तो सर इस सब में R माइनस है। सो वी कैन से कि जो अगर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स अगर आपके पास है तो दैट अल्काइल ग्रुप कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल because they can donate lone pair or either they will have charge. Okay, moving on. Neutral organic compounds in which carbon is bonded with more electronegative atom by double bond or triple bond behave as electrophile and nucleophile. ठीक है, like alkyl cyanide, aldehyde ketone etc. act as both electrophilic and nucleophilic reagent. ठीक है, द रीजन फॉर दिस इज कि अगर कुछ ऐसा है कि आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन आपको दिख रहा है तो इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, सो दैट्स व्हाई इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज जो कार्बन है, इस कार्बन में जो है आपका एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड है, राइट, एंड जो भी अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एट दिस पोजीशन एज वेल, यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, राइट। सिमिलरली दैट गोज फॉर एनी कार्बोनिल कंपाउंड आइदर कीटोन और एल्डिहाइड। सो कीटोन एल्डिहाइड में आप ये देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है आपका वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है बिकॉज इट विल हैव अ लोन पेयर, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो इट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक एट दिस पोजीशन कार्बन पर, और अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका ऑक्सीजन में अटैक कर देगा। ठीक है, सो बेसिकली ये जो न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल है ये एक रिलेटिव टर्म है कि अगर हम कार्बोनिल के बेसिस पे देखें, कार्बोनिल कंपाउंड्स के बेसिस पे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड या कीटोन, तो H+ अगर है तो H+ इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन अगर हम H+ के रिस्पेक्ट में कार्बोनिल ग्रुप देखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियोफाइल, राइट, H+ के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो फिर दिस कार्बोनिल ग्रुप विल बी इलेक्ट्रोफाइल, राइट। सो इट डिपेंड्स कि हम किसके बारे में बात करें, जनरली जो हमारा न्यूट्रल स्पीसी होता है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, हाँ, बट एनीवे यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, ज़्यादा सोचने पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, राइट। सो जस्ट वी नीड टू कीप इट सिंपल, राइट। सो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल is called as its nucleophilicity. So it is also the tendency of the formation of sigma bond with carbocation, ठीक है, other than H+, right. So जो भी आपका अनायन होगा उसका कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनता है with a carbocation then
it will be called as a nucleophilicity. So nucleophilicity कैसे जज करेंगे? तो nucleophilicity is nothing but this is something like बेस का जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल्स का भी हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी डिफाइन करते हैं. So a nucleophile in which central atom has a negative charge is a strong nucleophile than a similar species without a negative charge. ठीक है. सो जैसे OH माइनस और H2O में OH माइनस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल. सिमिलरली RO माइनस और ROH में RO माइनस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल. NH2 माइनस या NR2 माइनस और NR3 में आपका NR2 माइनस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल. सिमिलरली RS माइनस में नेगेटिव वाला जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा. सो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियडिक टेबल. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज as we move from left to right in a periodic table, and nucleophilicity is inversely proportional to the electronegativity of the central atom. ये जो है आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 माइनस NH3 OH माइनस एंड F माइनस. इसमें अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी देखें तो CH3 माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद NH3 माइनस OH माइनस एंड F माइनस. सो यहाँ पे आप बेसिकली देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम कम है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, राइट. और ये लॉजिकल भी लगता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सेंट्रल एटम की, so it means that it will have a tendency to attract the negative charge, right. तो अगर वो अनायन बना लेता है तो it will be very it will be stable, right, in comparison to those which will be less electronegative, right. Like for example CH3 minus और OH minus में कौन ज़्यादा स्टेबल है? OH minus स्टेबल है. हम लोगों ने GOC में भी देखा था, as the reason for that is being the electronegativity of the central atom, right. So वो स्टेबल अगर है तो वो फिर बॉन्ड बनाएगा क्यों? right, जल्दी बॉन्ड वो बनाएंगे जो कि स्टेबल नहीं है, right. Similarly nucleophilicity increases on moving down the group of the periodic table due to the decrease in the electronegativity. यहाँ पे भी हम लोग electronegativity से ही बात कर रहे हैं. So overall this can be termed as a universal thing कि nucleophilicity के बारे में अगर आप बात करोगे तो आइदर आप एक ग्रुप में मूव कर रहे हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और आइदर आप एक पीरियड में मूव कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप जो है वो हम लोग जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम देख सकते हैं. दैट इज गोइंग टू गिव अस आंसर्स, right, irrespective of the sides which we are moving. So if you are moving from top to bottom, the nucleophilicity is going to increase because the electronegativity of the central atom is decreasing. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम लोग ट्रेंड देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम पीरियडिक टेबल की बात करें तो इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्या होता है? बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है अगर हम पीरियडिक टेबल में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट? इंक्रीज करता है, वेरी गुड. और अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ये डिक्रीज करेगा, राइट. सो ये इसका ट्रेंड है. ठीक है, तो जैसे I माइनस देखिए, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, अगर इनमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में तो I माइनस विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल देन फिर Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये सारे बेटर न्यूक्लियोफाइल्स हैं. सिमिलरली HS माइनस और HO माइनस में आपका HS माइनस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल. PH3 और NH3 में PH3 will be better nucleophile, right. So the size of the side groups it will also affect the nucleophilicity. For example, जैसे अगर open chain है हमारे पास and we don't have too many numbers of carbon, so जैसे ये यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख सकते हो कि 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, राइट. सेकेंड एग्जांपल में ऑक्सीजन जो है वो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है और थर्ड एग्जांपल में जो है वो आपका वो 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है,
तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इट इज़ डिपेंडिंग, क्योंकि अल्टीमेटली जाकर के ऑक्सीजन को सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो इसको कितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिलता है अपने साइड ग्रुप से, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो माइनस जाकर के अटैक करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, सो जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं विच इज़ रेयर, बट हाँ कुछ बुक्स में आपको मिल सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द सीसी सिग्मा बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे इट इज़ गिवन, ऑलराइट, ये कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अनायंस, ये शॉर्ट एग्जांपल है। सो हमारे पास एक ओपन चेन में O माइनस है और एक क्लोज चेन में O माइनस है। सो द सेकेंड वन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन द फर्स्ट वन, क्योंकि जो फर्स्ट वन है वो आपका रोटेट हो सकता है और रोटेशन की वजह से ऑक्सीजन में कभी कभी जो है वो हिंड्रेंस हो सकता है। सो इट कैन इट कैन बिकम लाइक दिस ना, ऐसा भी तो हो सकता है ये। ठीक है, क्योंकि सीसी सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, लेकिन जैसे ही साइक्लिक ग्रुप आ जाता है तो साइक्लिक ग्रुप आने की वजह से आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो लग जाते हैं रोटेशन में। सो साइक्लिक ग्रुप्स आर नथिंग बट दे आर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, ये हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी पढ़ा था। ठीक है, सो द पाई बॉन्ड्स एंड द रिंग्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। सो ये इस रोटेशन की वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ा घट जाएगा। सो यहाँ पे भी लिखा है जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर कॉम्पैक्टली टाइट एट बोथ एंड्स एंड ऑफर लेस हिंड्रेंस। नेक्स्ट देखिए, लिविंग ग्रुप के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो लिविंग ग्रुप इज ऑलवेज अ स्पीसीज दैट टेक्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इट व्हेन इट डिपार्ट्स, एग्जांपल मोस्टली हैलाइड्स। ठीक है, सो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने जैसे बताया था आपको कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो दैट स्ट्रॉन्ग बेस विल बी वीक लिविंग ग्रुप, और अगर वीक बेस होगा तो दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो OH माइनस जो है आपका I माइनस को रिप्लेस कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग OH माइनस और I माइनस में बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ आपका जो है वो OH माइनस का ज़्यादा आएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। सिमिलरली CH3O माइनस का देखिए, जैसे ये रिप्लेस कर पा रहा है आपका Br को, फिर I माइनस को अगर आप देखो तो ये रिप्लेस कर पा रहा है Cl को। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन जो है वो रिप्लेस कर पा रहा है आयोडीन को। सो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द बॉन्ड्स बिटवीन द सबस्ट्रेट कार्बन एंड द लिविंग ग्रुप अंडरगोज हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, इस हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के होने की वजह से जो आपका कार्बोकेटायन है उसका जनरेशन होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन जनरेट होगा एंड Lg माइनस निकलेगा विच इज लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज करके। ठीक है, सो अगर हम लोग OH माइनस और I माइनस में देखें तो OH माइनस और I माइनस में आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका OH माइनस है, इसलिए ये रिप्लेस कर पा रहा है। सिमिलरली CH3O माइनस और Br माइनस में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी CH3O माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, राइट, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग कैसे जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कंपेयर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, कौन बेटर लिविंग ग्रुप होगा ए के लिए बताइए। FCl Br I दिया हुआ है इसमें। आयोडीन विल बी बेटर लिविंग ग्रुप। और बेसिकली आपको जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है वो बेसिक स्ट्रेंथ से देख सकते हैं। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी is inversely related to basic structure। ठीक है, तो ये जब निकलेगा तो ये माइनस फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली F माइनस बन के निकलेगा, Cl माइनस बन के निकलेगा,
बी आर माइनस और आई माइनस बन करके निकलेगा। तो उसमें बेसिकली आपको बताना है कि एफ माइनस और आई माइनस में जो वीक बेस है वो कौन है। तो ऑब्वियसली एफ माइनस और आई माइनस में आपका आई माइनस इज अ वीक बेस। बी वाला देखो, अच्छा बी वाला छोड़ो, अभी बी वाला बाद में देखेंगे, पहले सी वाला देखो। अगर हो पा रहा है बी तो फिर दैट इज वेरी गुड, और अगर नहीं हो पा रहा है तो सी वाला देखो। हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, बेसिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना है इसमें। सी का देखो, बी नहीं हो रहा तो बताइए सी का, सी में कौन कौन सा होगा लिविंग ग्रुप बेटर, आर ओ माइनस या ओ एच माइनस? आर ओ माइनस, ठीक है। तो आर ओ माइनस और ओ एच माइनस में अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ देखूँ तो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? आर ओ माइनस था ना, तो अगर ये बेटर बेस है तो फिर लिविंग ग्रुप बेटर कैसे हो सकता है? नहीं, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किसकी बेटर होगी? ओ एच माइनस, ठीक है। फिर पी एच ओ माइनस और आर ओ माइनस, हम यहाँ पे पी एच लगा देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? अच्छा, आर ओ माइनस स्ट्रॉन्ग बेस। पी एच ओ माइनस स्ट्रॉन्ग बेस इसीलिए नहीं है क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो दैट इज कॉन्जुगेटेड विद द बेंजीन रिंग। तो बेसिक स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज। सो ऑन दैट बेसिस आपका ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल्स का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ओ एच माइनस, एच माइनस, ई ई वाला बताइए, ई का क्या होगा? अच्छा, दोनों ग्रुप सेम है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, एक एक चेंज करना पड़ेगा इसमें, ये इसको सी एफ थ्री ले लो। आप बताओ। सेकंड वाले का ज्यादा होगा लेवल, राइट? ठीक है, तो इसी बेसिस पे जो है हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे, और बेसिक स्ट्रेंथ देखने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो ये सभी का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सी एफ थ्री होना चाहिए, ठीक है, इसको करेक्ट करेक्ट करवा देते हैं।
बी में देखो, जैसे बी में हम लोगों का जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है वो सेकंड का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, फिर देन थर्ड का है, फिर देन फर्स्ट का है। तो अगर हम लोग इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो फर्स्ट का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा आएगा, फिर थर्ड का आएगा, फिर आपका सेकंड का आएगा। ठीक है, ऑन दैट बेसिस। सो देख लो, कुछ डाउट हो तो बताना। सेकंड में कोई डाउट है? नहीं, एक्चुअली हम लोगों को क्वेश्चन किया हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ में ये वाला। ठीक है, तो अगर होगा तो जीओसी भी देख सकते हो, रिफर रिफर कर सकते हो। एनीवे, सो मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, दिस इज द नोन रिएक्शन, ठीक है, रिपोर्टेड रिएक्शन है। सो वी हैव 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल में HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन हो रहा है, और ये आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना करके एज अ प्रोडक्ट दे रहा है। सिमिलरली PbR3 से भी यही रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। सो ये HBr में मैकेनिज्म जो हुआ था दैट इज SN1 मैकेनिज्म। सो SN1 मैकेनिज्म का मतलब है कि दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, वन इज रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली SN2 मैकेनिज्म अगर हो रहा है तो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। तो 3 डिग्री अल्कोहल में ये देखा गया कि HBr से अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो दिस रिएक्शन वाज फास्ट, लेकिन PbR3 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो दिस रिएक्शन इज स्लो। वही अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल में देखें तो 1 डिग्री अल्कोहल में HBr के साथ रिएक्शन कराने पे ये रिएक्शन स्लो होता है, और PbR3 से रिएक्शन कराने में ये रिएक्शन फास्ट होता है। So definitely, the way the reaction is moving on the basis of the intermediate formation or the attack of the nucleophile, it is depending on the crowding of the substituents, ठीक है, of the reactant की substituent की crowding पे depend कर रहा है, right। So ये reactant पे भी डिपेंड करेगा कि आपका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा हो, राइट। तो आप ये जैसे जैसे देखो कि 3 डिग्री में SN1 फास्ट हो रहा है या SN2 फास्ट हो रहा है, तो 3 डिग्री में SN1 फास्ट हो रहा है इन 3 डिग्री अल्कोहल, SN1 is faster, फास्ट। वाइल अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल अगर लेते हो, 1 डिग्री अल्कोहल में SN2 इज फास्ट। ये ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हमें अभी हम लोगों ने अभी अभी एनालाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रिपोर्टेड रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म्स। तो पहले SN2 से स्टार्ट करते हैं, फिर देन आई विल मूव टू SN1, क्योंकि SN2 थोड़ा समझने में जो है इजी है, और ये इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं है। सो नॉर्मली SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आकर के लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, और दिस विल बी अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, राइट, नो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज बीइंग ऑब्जर्व, और ये RDS है विच इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्योंकि ये दिस इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड दिस इज द ओनली स्टेप ऑफ द रिएक्शन, so we can write it down, the rate of the reaction expression लिख सकते हैं, which is K multiplied by the normal butyl leaving group, ठीक है, this is a normal butyl leaving group and the concentration of the nucleophile। so SN2 आप देख सकते हो कि it is dependent on the concentration of the nucleophile and the concentration of the substrate,
सो इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर इसकी हम लोग मॉलिकुलैरिटी की बात करेंगे तो दिस इज बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, राइट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ तो देयर वाज वन डिस्कशन अबाउट द एलिमेंट्री एंड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, देयर आर नो अदर स्टेप्स इन्वॉल्व। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होते हैं जो कि दैट टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में या फिर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शंस, राइट। सो एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, और उस बेसिस पे हम लोग बोल देते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वही मॉलिकुलैरिटी होता है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल के जाएगा उसके पीछे से न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, सो द सबस्ट्रेट कार्बन अंडरगोज इन्वर्जन विच इज नोन एज वॉल्टन इन्वर्जन। ठीक है, मैकेनिज्म इसका देखो कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि एक काइरल अल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक है, दिस इज काइरल अल्काइल हैलाइड, और इसमें ए बी एंड सी आर थ्री डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें OH माइनस का अटैक करवा रहे हैं। OH माइनस के अटैक से आप देखो क्या होता है, OH माइनस विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। जिस साइड लिविंग ग्रुप लगा है उधर से अटैक नहीं कर रहा है, इस साइड से अटैक नहीं हो रहा है जिधर BR लगा है। अटैक किधर से हो रहा है, फ्रॉम द बैक साइड। इन तीनों बॉन्ड्स के बीच में जो जगह बची होगी उस जगह से अटैक होगा। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा हूं मैं। इस ट्रांजिशन स्टेट में आप देखो कि कार्बन के पास जो है वो 5 बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज sp2, क्योंकि ये बॉन्ड अभी ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो कार्बन तो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता ना, कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, चार से ज्यादा तो नहीं बना सकता, राइट। तो इसमें जो कार्बन है दैट कार्बन इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट, क्योंकि कार्बन पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और ब्रोमीन में आपका एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। इस रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में अगर आप देखो ध्यान से तो दिस सबस्ट्रेट हैज बीन इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्जन हो चुका है, राइट। इट इज समथिंग लाइक अ मिरर इमेज, इट इज समथिंग लाइक अ मिरर इमेज। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ मिरर इमेज, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रोमीन होता, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी रंग देते हैं ऐसी, सो इन अ वे these two are should be mirror image अगर आप देखो तो। सो अल्टीमेटली अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करोगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट कॉन्फ़िगरेशन विल बी डिफरेंट, ऑलराइट। सो सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज हो गया है। इसी प्रोसेस को हम लोग वॉल्डन इन्वर्जन कह रहे हैं। दिस इज समथिंग लाइक कि छाता खोलते हैं ना बारिश में, और बारिश में बहुत ज़्यादा हवा चलने लगे तो छाता जो है वो टूट जाता है और छाता कभी कभी ऊपर चला जाता है ना। छाते का जो डायरेक्शन होता है, अम्ब्रेला का जो डायरेक्शन होता है वो आपकी तरफ होता है ताकि बारिश रुक पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा हो तो वो उल्टा भी हो जाता है। तो दिस इज समथिंग लाइक अम्ब्रेला इन्वर्जन, इसको हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। इसका एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं कैसा होगा एनर्जी प्रोफाइल। सो नॉर्मली इट इज नॉट डिपेंडेंट कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो मैं डिस्कस करूंगा कैसा रिएक्शन है। लेकिन एनीवे जो देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक भी हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। सो दिस इज
यहाँ पे हम लोग गिब्स एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं विथ रिएक्शन, या सिंपली एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं। गिब्स फ्री एनर्जी आ गया तो अपने कान चौड़े करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी इज नथिंग बट दैट इज द फ्री एनर्जी, और एनर्जी सिंपली एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज सबस्ट्रेट की एनर्जी इतनी है, फिर ये ऊपर जाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और फिर फाइनली जाकर के आपको प्रोडक्ट बन जाएगा, right? So along with the usual factors of temperature and the solvent, the rate of SN2 reaction depends on the nucleophiles, carbon skeleton and the living group, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर हैं? तीन फैक्टर तो ये हो गया, बाकी दो फैक्टर हैं आपका टेम्परेचर और सॉल्वेंट, ऑलराइट। क्योंकि सॉल्वेंट जो है आपका एक रोल प्ले कर सकता है, because as you can see कि in this reaction mechanism there is no generation of either carbocation or carboanion, or as a matter of fact no anion has been generated or no ions has been generated, right? So there is a no need of a polar protic solvent, है ना। polar protic solvent क्या करेगा? अगर suppose ROH है, ROH is a polar protic solvent, जिसमें एक एक्टिव प्रोटॉन है, दिस इज एक्टिव प्रोटॉन, right? So this is polar protic solvent. ऐसे सॉल्वेंट जिसमें एक्टिव प्रोटॉन हो, ठीक है ना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इट कैन सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड अनायन, अनायन को भी सॉल्वेट कर लेता है और कैटायन को भी सॉल्वेट कर लेता है। इसलिए नॉर्मली जो जैसे जिस रिएक्शंस में कैटायन या अनायन फॉर्म हो रहा है इंटरमीडिएट्स में, तो उसमें हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, राइट। क्योंकि अगर कैटायन हुआ तो कैटायन को ऑक्सीजन संभाल लेगा, ठीक है, और अगर अनायन हुआ तो अनायन को हाइड्रोजन संभाल लेगा, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो SN2 मैकेनिज्म के लिए हमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है। पोलर प्रोटिक रखेंगे तो फिर ये रिएक्शन में जो है वो थोड़ा चेंजेस आ सकता है। वो क्या चेंजेस आएगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, सॉल्वेंट का जो इफेक्ट है, ठीक है। तो वो एक और type of what there is one more type of a solvent which is polar aprotic solvent or aprotic solvent, for example ether or, ठीक है। so this is polar aprotic solvent, इसमें एक्टिव प्रोटॉन नहीं है, so it is not going to solvate आपका अनायन, ठीक है। so it will not solvate anion। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी में कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं। हाँ, so the no carbocation is generated, hence no rearrangement is observed, right? Because this is a single step process.
सो कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जैसे बना के देखिए इस पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। ड्रॉ करके देखिए पेन और पेपर में। किस साइड से जुड़ेगा? हाँ, मतलब जिधर हाइड्रोजन लगा है उस उधर आपका OH लग जाएगा, और जहाँ पे Cl है वहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो। OH, OH आएगा या I माइनस, I माइनस। ठीक है, अब वाल्टन इन्वर्जन की वजह से ये सब हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल बी अफेक्टिंग SN2, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। सो देयर इज वन सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट में देखिए क्या होता है, अगर मैं धीरे धीरे ब्रांचिंग बढ़ाता जाऊं, ठीक है, सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट को ही बोलते हैं सबस्ट्रेट। सो जैसे हमारे पास CH3 लिविंग ग्रुप हो या CH2CH3 लिविंग ग्रुप हो, फिर इसमें एक और ब्रांचिंग बढ़ा दिया, ठीक है, लिविंग ग्रुप यहाँ आ गया, फिर एक और ब्रांचिंग बढ़ा दिया, तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करें, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, लिविंग ग्रुप मतलब बेसिकली लिविंग ग्रुप को हम लोग अभी हैलाइड मान के चल रहे हैं, हालांकि और भी लिविंग ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट। सो लेकिन द पॉइंट इज कि इफ वी आर इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट ब्रांचिंग, then that is going to decrease the rate of SN2 reaction। ठीक है, सो एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर जाने पे देखो जैसे जैसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता जाएगा वैसे वैसे SN2 का जो रेट है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, द रीजन बीइंग इज कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उस न्यूक्लियोफाइल को डिफिकल्टी होगी आकर के अटैक करने में। यहाँ तो अटैक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिविंग ग्रुप चला गया, यहाँ पे भी आकर के अटैक हो सकता है, इस जगह पे लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही और ब्रांचिंग बढ़ेगा, देख रहे हो इस प्लेस में जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस क्राउडिंग, दिस कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, और जैसे ही 3 डिग्री कार्बन में आएगा तब तो फिर और भी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है आकर के न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर दे, क्योंकि कोई जगह खाली ही नहीं है इसके लिए, एवरीथिंग इज फिल्ड विथ बल्कियर ग्रुप। ठीक है, इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन ऑब्वियस,
बल्कियर ग्रुप। सो जो 3 डिग्री मोस्टली देखा गया है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर है, दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, मैं लिविंग ग्रुप को भी हैलाइड मान रहा हूँ, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सिर्फ आपका SN1 होता है, ओनली SN1, SN2 नहीं देखा गया है इसमें। और अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में देयर विल बी बोथ SN1 एंड SN2, दोनों हो सकता है, ठीक है। So the rate of SN2 depends on the bulkiness of the 3 groups attached on the carbon and they are inversely related, कि the rate of SN2 is inversely related to the bulkiness of the 3 groups on the carbon। तो ये तीनों groups of on the carbon, if their bulkiness is increasing then the rate of SN2 is decreasing, हम लोग ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। Similarly, rate of SN2 की अगर बात करें तो that is also directly proportional to the stability of the transition state, right? Transition state कितना ज़्यादा stable है उस पर depend करता है। So इसका जो transition state है ना, इस transition state की properties जो है वो थोड़ा कार्बोकेटाइन properties है, ठीक है, इसकी properties, ठीक है। यहाँ का जो कार्बन है, that carbon is has some properties which is related to the carbocation, ठीक है। हालांकि कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टीज वो कार्बोकेटाइन जैसी ही शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो था आपका सबस्ट्रेट। सेकेंड फैक्टर है सॉल्वेंट। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल इज सॉल्वेटेड which affects his reactivity, hence polar aprotic solvent is preferred। जो अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, राइट। न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको सॉल्वेट करके रख लेगा, अगर सॉल्वेट हो गया तो उस केस में क्या होगा कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। जैसे हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिल फाइल्स वर्सेस बेसिस, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस। पहले इसको हम लोगों ने लिया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर गैसियस फेज में, राइट। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वेट नहीं होंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक फॉर एग्जांपल ROR, मैंने बताया था ना, इसमें जो है आपका अनायन सॉल्वेट नहीं होगा। तो अब अगर इसमें सॉल्वेट नहीं हुआ है अनायन, तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स का ऑर्डर क्या है, ठीक है, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ये होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं,
याद है क्या किसी को? कैसे देखते थे बेसिक स्ट्रेंथ? एबिलिटी ऑफ द लोन पे, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ अनायन से भी देखते थे? नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ देखते थे ना स्टेबिलिटी ऑफ द अनायन से। इसी तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ भी देख सकते। हाँ बिल्कुल, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। एसिडिक स्ट्रेंथ देखते थे हम लोग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। तो ये डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगा। दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, वही हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों ने ROH ले लिया, राइट। तो अब क्योंकि यहाँ पे एक एक्टिव प्रोटॉन है, तो दैट एक्टिव प्रोटॉन इज गोइंग टू सॉल्वेट द अनायन, राइट। सो F माइनस का साइज देखिए, इट इज स्मॉल, और I माइनस का साइज जो होगा वो लार्ज होगा। So first and foremost thing which is important is to know कि सॉल्वेशन किस पे डिपेंड करता है। So solvation is directly proportional to the charge density. Where rho charge is charge density. Which is nothing but this is charge per unit volume. ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, राइट, इसका मतलब है कि चार्ज आइदर चार्ज ज्यादा हो, राइट। रो चार्ज ज्यादा कब हो सकता है? आइदर वॉल्यूम बहुत कम हो और चार्ज बहुत ज्यादा हो। F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस में चार्ज तो सेम है लेकिन वॉल्यूम का डिफरेंस है। तो सबसे कम वॉल्यूम जो है आपका F माइनस का है, इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा सॉल्वेट होगा F माइनस। ठीक है, सो इट विल बी मोस्ट सॉल्वेटेड और ROH इसको सॉल्वेट करके रखेगा। ठीक है, और यहाँ जो सॉल्वेशन है वो थोड़ा कम सॉल्वेशन होगा। ठीक है ना, तो अब सॉल्वेशन होने की वजह से क्या हुआ कि जो F माइनस है
उसका साइज देखिए आप, इक्विवेलेंट साइज वो इंक्रीज हो गया है ना। F माइनस का जो इक्विवेलेंट साइज है वो इक्विवेलेंट साइज इतना बड़ा हो गया, राइट। अब ये साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी में इफेक्ट्स आएंगे, because nucleophilicity is nothing but that is the tendency to form sigma bond with the carbon, right। तो जब F माइनस छोटा था तब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में आसानी हो रही थी, या जब F माइनस बड़ा हो गया सॉल्वेट हो गया तब आसानी पड़ेगी, है ना। मेरे क्वेश्चन समझ रहे हो? जब F माइनस छोटा था, जब सॉल्वेट में, हाँ, जब छोटा रहेगा तभी आसानी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे जैसे था पोलर एप्रोटिक में कि जब वो छोटा रहेगा तभी तो जा करके अटैक करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर बड़ा हो गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर स्टेरिक फैक्टर की वजह से रिपल्शन हो सकता है, राइट। तो अब जा करके अगर हम लोग इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी देखें तो अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू दैट इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया फर्स्ट F माइनस लेस देन Cl माइनस लेस देन Br माइनस फिर लेस देन I माइनस, एंड सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखें तो बेसिक स्ट्रेंथ अभी भी वही है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, राइट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी डिफरेंट था जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट था। ये देखो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी I माइनस का सबसे ज्यादा था, अब जा करके यहाँ पे ये चेंज हो गया। कहाँ चेंज हुआ, ये नहीं हुआ है ना, अच्छा हाँ, कहीं 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 गड़बड़ किया है, ओके। न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी ओके ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, राइट, तो F माइनस और I माइनस में तो I माइनस बड़ा है ना, F माइनस छोटा है तो F माइनस पहले जाकर के पहले जाकर के सिग्मा बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ, ठीक है। सो ये अनायन का साइज और यहाँ पे ये बड़ा अनायन का साइज, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका जो अनायन है दैट इज नॉट सॉल्वेटेड, एंड बिकॉज इट इज नॉट सॉल्वेटेड इसमें जो साइज का फैक्टर है या फिर स्टेरिक फैक्टर है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली का क्या करना है इनको, इन न्यूक्लियोफाइल्स को जाकर के सिग्मा बॉन्ड बनाना है, ठीक है, कार्बन के साथ। सो सिमिलरली अगर हम लोग F माइनस और I माइनस में कंपेयर करेंगे तो F माइनस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड इजीली बना लेगा, क्योंकि F माइनस जो है वो 2p से बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ और कार्बन भी 2p से बॉन्ड बनाएगा, तो 2p का बॉन्ड will be better, the overlap, the extent of the overlap will be good. Similarly I माइनस में अगर हम लोग देखेंगे तो I माइनस में जब हम लोग बॉन्ड बनाएंगे कार्बन के साथ तो आपका जो है वो 5p से बनेगा, आयोडीन के 5p से और कार्बन के 2p से बनेगा। सो ऑन दैट बेसिस, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है आपका F माइनस का बेटर होना चाहिए इन कंपैरिजन टू I माइनस, जब सॉल्वेटेड नहीं है तब। लेकिन जब सॉल्वेटेड हो जाएगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द अनायन, क्योंकि F माइनस जो कि अब सबसे छोटा था
वही सबसे छोटा सबसे ज़्यादा सॉल्वेट हो चुका है. सो नाउ द क्राउडिंग हैज़ इंक्रीज्ड at the sides of the F minus and thus its nucleophilicity has been decreased, right? So in general way अगर आपको पूछा जाए कि what is the nucleophilicity, तो आप nucleophilicity का जो आंसर है वो करोगे on the basis of the electronegativity of the central atom. ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर सॉल्वेंट आ गया तो सॉल्वेंट में आप आंसर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्वेशन. ठीक है, अगर पोलर एप्रोटिक रहा तो उसमें देख लीजिए कि कैसा होगा, और पोलर एप्रोटिक रहा तो उसमें फिर देख लीजिए कैसा होगा. ठीक है, ये पॉइंट मेरे समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? बोलो. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो कि अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट नहीं दिया है and they have asked you about the nucleophilicity, answer on the basis of the electronegativity of the central atom. और अगर solvent दिया है फिर then we should see about the solvation or not. ठीक है, depending on the solvent that we have. So nucleophilicity इसमें जो है आपका वो change हो गया, और ये nucleophilicity change होने का reason यही है, solvation. So you can see कि basic strength जो है वो आपका change नहीं कर रहा है, basic strength भी यहाँ पे यही है, और पोलर प्रोटी एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी यही है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी बेसिक स्ट्रेंथ यही है. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि द बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. That means it is dependent on the stability of the anion, right? लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी को कहते हैं it is a kinetic property. ठीक है, because it is the nucleophilicity is dependent on the tendency to form sigma bond with a carbon, और ये जो है मोस्टली रेट ड्रिवन होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, और बेसिसिटी विल बी थर्मोडायनेमिक ड्रिवन, राइट? सो बेसिक स्ट्रेंथ जब भी फाइंड करेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो दैट विल बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट, राइट? चलिए, मूविंग ऑन विथ द सेम कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ SN2 इज न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो SN2 में हम लोगों ने देखा था जैसे कि रेट जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा था, आपका कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स पे भी. सो न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल in the SN2 reaction. That's why nucleophiles is an important factor. So the rate of the reaction depends on the concentration and the strength of the nucleophile. अगर concentration ज़्यादा होगा या फिर एक strong nucleophile होगा तो उसका rate भी ज़्यादा होगा. तो जैसे अगर मान लो कि कंपेयर करते हैं हम लोग रेट ऑफ SN2 ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल्स, तो फर्स्ट वाले का बताइए किसका ज़्यादा होना चाहिए, H2O और OH माइनस में किसका रेट ज़्यादा होना चाहिए, किसकी वजह से रेट ज़्यादा होना चाहिए? ठीक है, याद रहे कि SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रेंथ जो है वो न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा होना चाहिए, सिमिलरली कंसंट्रेशन भी ज्यादा होना चाहिए. तो
H2 और OH माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल ना, अभी ऊपर देखा था, देखो फिर से वापस जाते हैं। हाँ ये देखो, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि न्यूक्लियोफाइल इन विच द सेंट्रल एटम हैज अ नेगेटिव चार्ज इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो इसी बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये आ गया। फिर ROH और RO माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? RO माइनस। PHO माइनस और CH3O माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल? CH3O माइनस। RO माइनस और NH2 माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल? NH2 माइनस। CH3O माइनस और CH3CH2O माइनस में बेटर न्यूक्लियोफाइल? CH3O माइनस नहीं, इसमें CH3CH2O माइनस, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन अगर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ये चेक करेंगे कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा अवेलेबल कहाँ है, क्योंकि वो पहले रिएक्ट करेगा ना जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अवेलेबल है। तो CH3CH2 जो है वो प्लस आई की वजह से O माइनस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्टर, टोटल हम लोगों ने अभी कितने फैक्टर्स देखे? 3 फैक्टर्स देखे। एक और फैक्टर है विच इज द लिविंग ग्रुप का फैक्टर। सो CH3F का अगर हम लोग देखें तो इसमें F इज द पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप, और RCH2N2 प्लस अगर देखें तो दिस इज N2 इज अ स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। सो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली, राइट। सो जैसे देखो कि इसमें वी हैव टू कंपेयर द रेट ऑफ SN2 इन दिस फर्स्ट वाला बताओ किसमें ज्यादा होगा? 1 2 3 4 बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और सेकंड वाला बताइए। वन ग्रेटर देन, टू ग्रेटर देन। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग SN1 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म देख लिया। SN1 मैकेनिज्म में देयर विल बी मोर देन वन स्टेप। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि आपका अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड बना रहा है आपका फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन, विच इज अ स्लो स्टेप एंड दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कार्बोकेटायन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है। सो SN2 में आपका सिंगल स्टेप था और SN1 में आपका 2 स्टेप्स मिल रहे हैं। सो SN1 इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्री रिएक्शंस। इसका अगर हम लोग रेट देखें तो दैट रेट इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल,
टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड कर रहा है, और ये हमेशा इसी पे डिपेंड करेगा। एंड सिंस दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट SN1। प्रोडक्ट जो बन रहा है, दैट प्रोडक्ट में रैसमाइजेशन हो सकता है इफ वी आर टेकिंग अ कायरल मॉलिक्यूल, राइट, और सिंस कार्बोकेटाइन इज जनरेटिंग एज एन इंटरमीडिएट, इट विल रीअरेंज इफ पॉसिबल। इसमें भी एनर्जी कर्व देखिए, एनर्जी कर्व में आपका ये स्टेप 1 वाला है और ये स्टेप 2 वाला है। स्टेप 1 वाले में दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये आपका कार्बोकेटाइन बता रहा है और ये आपका प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कार्बोकेटाइन। स्टेप 1 में भी देख सकते हो कि स्टेप 1 में आपका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द स्टेप 2। तो ये स्टेप 1 का एक्टिवेशन एनर्जी इतना है और स्टेप 2 का एक्टिवेशन एनर्जी इतना। एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगा तो स्लो स्टेप होगा, तो दैट्स व्हाई स्टेप 1 शुड बी स्लो। सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपको ज्यादा होना चाहिए। देखिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं, इसके प्रोडक्ट्स बना करके देखो, इसके प्रोडक्ट्स बना करके देखो क्या होगा। कार्बोकेटाइन बनेगा फिर मिथाइल शिफ्ट होगा, देखो देखो। कोई बोला था पहले मैकेनिज्म दिखाना है क्या किसी को? एनर्जी कर्व, अच्छा एनर्जी कर्व देखो। फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनाओ, देखो क्या होगा। पीआर की जगह ओएच लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक रासायनिक प्रोडक्ट बनेगा हमारा, नहीं कार्बोकेटाइन शिफ्ट नहीं होगा यहाँ बिल्कुल। तो शिफ्टिंग वगैरह तो नहीं होगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है आपका, तो एक प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा और एक प्रोडक्ट 50% डी और 50% एल। सेकेंड का देखो, यहाँ पे OH लग जाएगा, नहीं और एसएमाइजेशन भी हो सकता है, नहीं 50% डी 50% एल। थर्ड वाला देखो, बिल्कुल बिया निकल जाएगा और वो CH3 वहां पे ऐड हो जाएगा, राइट। तो इसका प्रोडक्ट भी बना ही लेते हैं।
हम्म। ओके। ये बताओ मुझे कि यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड है वो अल्काइल हैलाइड कौन सी डिग्री का है? 3 डिग्री। ठीक है, चलो। जब ये 3 डिग्री का है, हाँ ये देखिए, ये 3 डिग्री। हाँ, तो 3 डिग्री में आप पोलर एप्रोटिक लो चाहे पोलर प्रोटिक लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 डिग्री अगर अल्काइल हैलाइड लिया तो वो सिर्फ SN1 ही दिखाएगा, SN2 वो कभी नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप एसीटोन लो या कुछ लो, एसीटोन लेने से ही काम चल जा रहा है इसीलिए कुछ और नहीं ले रहे। हालांकि चलो आर्गुएबल है, एसीटोन यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1। सो पहले सबस्ट्रेट देखते हैं। द रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन एंड वी नो द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सो 3 डिग्री वाला जो है वो SN1 दिखाएगा आपका रिएक्शन है। और फिर सो एज जैसे जैसे आपका जो ब्रांचिंग है वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ द SN1 विल ऑल्सो इंक्रीज। तो पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसे करके रिएक्शन डिक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं विच इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट सॉल्वेंट इज की SN1 टाइप आर फेवरेबल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्योंकि कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, राइट। सो एज इट कैन सॉल्वेट बोथ cation and anion, right? सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने से क्या होगा ना कि आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है दैट कार्बोकेटाइन इज नाउ बीइंग सॉल्वेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट, और सॉल्वेट होने के बाद उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, है ना। द रीजन बीइंग इज कि जो आपका चार्ज है दैट चार्ज इज बीइंग डिस्पर्स्ड, राइट। पूरे पूरे में चार्ज जो है आपको डिस्पर्स हो जाएगा। सो सॉल्वेशन के बाद ये आपका एनर्जी कम होगा, ठीक है, जो रेड वाला है वो। थर्ड फैक्टर इज न्यूक्लियोफाइल। So nucleophile does not affect the reaction, right? The reason being is कि आप इसका रेट एक्सप्रेशन देखो, रेट एक्सप्रेशन में कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है। तो अगर कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल्स के कंसेंट्रेशन पे इट शुड नॉट डिपेंड, राइट। सो द कंसेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डोंट चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन। आप कैसा भी न्यूक्लियोफाइल यूज कर लो, SN1 उतना ही रेट रहेगा, रेट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ सॉल्वोलाइसिस दैट इज सॉल्वेंट बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो रिएक्शन है उसमें हम लोग सॉल्वोलाइसिस कराते हैं, जैसे ये जो दो एग्जांपल हम लोगों ने ऊपर देखा था, है ना। दिस इज नोन एज सॉल्वोलाइसिस। हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यूज नहीं कर रहे हैं, यूज कर भी सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूज करने पे भी, लेकिन अगर सिर्फ H2O या फिर कोई सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं तो सॉल्वेंट से भी प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब सॉल्वेंट से प्रोडक्ट मिल ही जा रहा है तो फिर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। सो नॉर्मली दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर टाइप्स ऑफ सॉल्वोलाइसिस, ठीक है। These reactions. नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर देखिए, फोर्थ फैक्टर इज द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप में is the rate of SN1 is directly proportional to the ability of the living group. लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा
SN1 भी उतना बेटर होगा। द रीजन बीइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1। इसमें आप देखो जैसे फर्स्ट स्टेप में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खुद से, ठीक है, या फिर यूं कहें केमिस्ट्री के टर्म्स में या थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में कि स्पॉन्टेनियसली स्टेप वन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर स्पीसीज, राइट। सो स्टेप वन अगर हो रहा है तो ये कब होगा? जब आपका लिविंग ग्रुप विल बी अ बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा तो फिर ये स्टेप वन क्यों होगा, है ना। सो दैट्स वाई लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे SN1 का रेट जो है वो डिपेंड करता है। तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना बेटर रेट ऑफ SN1 होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो फर्स्ट वाले में बताइए किसका SN1 ज्यादा होगा? पहले वाले का ज्यादा होगा, राइट। इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके चेंजेस आ रहे हैं लिविंग ग्रुप पे। तो ऑन दैट बेसिस जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा उसका बेटर SN1। ठीक है, सेकेंड वाले का बताइए। पहले वाले का या दूसरे वाले का? पहले वाले। दूसरे वाले में यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। दूसरे इसलिए दूसरे वाले में नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड वाला बताइए। 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। वही यहाँ पे भी हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन से जज कर रहे हैं। फोर्थ वाले में बताइए। वन ग्रेटर है, यहाँ पे फिर से वही पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। नेक्स्ट फिफ्थ का बताओ। अगर आप बोल रहे हो 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, ये सब लोग यही बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं? 1 फिर 3। ये डिफरेंट क्यों आया आपका? 1 के बाद 3 क्यों आया? और 3? एक्चुअली में इसमें जो रेट है आपका वो है 1 फिर 2 फिर 3। ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसके कार्बोकेटायन को एक बार बना के देखो और उसका प्रॉपर्टी मुझे बताओ तो क्या कैसा क्या प्रॉपर्टी है इसके कार्बोकेटायन।
वाला ना। राइट, इसलिए ये ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले में रेजोनेंस होगा, सेकंड वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है, थर्ड वाला एंटी एरोमेटिक होगा, इसलिए थर्ड वाले का सबसे बेस्ट। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन 6 वाला बताइए। रीजन क्या है? वन ग्रेटर देन। सेवेंथ बताओ। इसमें भी वन ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका अगर हम लोग केटायन बनाए, बिल्कुल, तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ब्रिजेट कार्बोकेटायन बनता है, राइट? सो इट इज हाईली अनस्टेबल। द रीजन बीइंग इसकी कार्बोकेटायन बनेगा, तो कार्बोकेटायन बनने के बाद इसकी ज्योमेट्री है वो ट्रायगोनल प्लेनर होने की, राइट? कि कार्बोकेटायन जो है वो आपका ट्रायगोनल प्लेनर होता है, लेकिन ये ट्रायगोनल प्लेनर नहीं हो पाएगा ऐसा स्पीसीज। ट्रायगोनल प्लेनर अगर नहीं हो पाएगा तो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी फॉर्म, ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, 8th वाला। वन ग्रेटर देन 2। ठीक है, 9th वाला देखिए। 9th में आपको रेट बताना है, एक्स का रेट ज्यादा होगा या वाई का रेट ज्यादा होगा? डिपेंड नहीं करता, वेरी गुड। तो न्यूक्लियोफाइल का आप कितना भी कंसंट्रेशन लो, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मेरा साउंड नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है कि नहीं? सबको यही दिक्कत है क्या? 10th वाला देखो, 10th वाला बताओ क्या होना चाहिए। एक में हम लोग यूज कर रहे हैं H2O और एक में 50% H2O और 50% एसीटोन। एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, वेरी गुड। एक्स में हम लोगों के पास कंप्लीटली 100% पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है,
और इसमें हमारे पास 50% पोलर प्रोटेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखना हम लोगों को कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2। ठीक है, तो कंपैरिजन कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन स्केलेटन पे। तो अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे देखो, जैसे SN1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या SN2 हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो देख रहे हैं। तो जैसे हमारे पास CH3X है, इसमें SN1 नहीं होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं हो पाएगा। SN2 बहुत बढ़िया से होगा क्योंकि कोई हिंड्रेंस नहीं है या कोई स्टेरिक फैक्टर नहीं है। कार्बन में सारे हाइड्रोजन्स लगे हैं विच आर स्मॉलर ग्रुप्स। 1 डिग्री पे आ जाओ, CH3 CH2X, इसमें भी SN1 नहीं होता है क्योंकि आपका ये कार्बोकेटाइन जो जनरेट होगा दैट विल बी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। सो नॉर्मली 1 डिग्री कार्बोकेटाइन या मिथाइल कार्बोकेटाइन जो है आपका स्टेबल नहीं है, so that's why SN1 is not taking place। SN2 का रेट होगा वो वेरी गुड, एक गुड होगा, ठीक है, अच्छा रेट से जाएगा SN2। इसमें भी 2 डिग्री पे आ जाओ अल्काइल हैलाइड पे। 2 डिग्री पे अगर करेंगे तो यहाँ SN1 भी मॉडरेट रेट से होगा और SN2 भी मॉडरेट रेट से होगा, दोनों का रेट विल बी स्लो। ठीक है, इन कंपैरिजन टू ये जो दोनों रिएक्शन शो किया है वो। 3 डिग्री पे अगर आएंगे तो 3 डिग्री पे SN1 विल बी एक्सीलेंट वाइल SN2 तो होता ही नहीं है 3 डिग्री पे। ठीक है, तो जो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए वो है ये वाला। ठीक है, सेकेंड डिग्री अल्काइलाइड, क्योंकि सेकेंड डिग्री अल्काइलाइड में दोनों ही हो रहा है, SN1 भी हो रहा है और SN2 भी हो रहा है, राइट। अब अगर मैं थोड़ा एक रिकैप दूं जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, तो पीछे वाले में हम लोगों ने SN1 मैकेनिज्म में और SN2 मैकेनिज्म में फैक्टर्स पढ़े, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 and factors affecting SN2, right? So all the factors were dependent on first substrate। ठीक है, सेकेंड फैक्टर जो था हमारा वो न्यूक्लियोफाइल था, थर्ड फैक्टर जो था हमारा वो सॉल्वेंट था, राइट। और जो हमारा फोर्थ फैक्टर था, वो फोर्थ फैक्टर क्या था? लिविंग ग्रुप, राइट। फोर्थ फैक्टर वाज लिविंग। तो इसमें 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सबस्ट्रेट से तो आंसर नहीं आएगा कि SN1 होने वाला है या SN2 होने वाला है, because this is not going to help। Now what we must do is we must analyze these 3 factors and on these 3 factors we should decide कि इसमें SN1 होना चाहिए या फिर SN2 होना चाहिए। ठीक है, कौन बताएगा? ये तीनों फैक्टर्स बताएंगे हम न्यूक्लियोफाइल। वो कैसे होगा वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, देखो उधर ही उसी के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। इसमें एक नोट करने की बात है कि कार्बोकेटाइन जो है वो फॉर्म नहीं होगा, अभी हम लोग डिस्कस करें तो दिस इज ब्रेजहेड कार्बन। ठीक है, यहाँ पे बस जस्ट मेंशन कर दिया है। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दैट द प्राइमरी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट in a SN1 reaction is the stability of the carbocation form that is formed। तो जैसे देखो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, ये अलाइलिक हैलाइड हो गया या फिर बेंजाइलिक हैलाइड हो गया।
ये सारे SN1 रिएक्शन दे सकते हैं क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, ये कार्बोकेटायन बनाएगा तो ये स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, और ये कार्बोकेटायन बनाएगा तो फिर ये बेंजीन रिंग के साथ जो है कॉन्जुगेटेड होगा। यहाँ देखिए जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं सॉल्वोलाइसिस। जैसे सॉल्वोलाइसिस मतलब सॉल्वेंट से रिएक्शन इज सॉल्वोलाइसिस, राइट। तो H2O से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये देखो जैसे अलाइलिक हलाइड का रिएक्शन कराया है तो दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं हम लोगों को, एक ये प्रोडक्ट मिल सकता है और एक ये प्रोडक्ट मिल सकता है ना, क्योंकि रिएक्शन जो है आपको SN1 से जा रहा है ना, तो SN1 से जा रहा है रिएक्शन तो आपका रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। तो पहले वाले से प्रोडक्ट बन रहा है हमारा ये वाला, ठीक है, और सेकंड वाले से प्रोडक्ट बन रहा है नेक्स्ट टेबल में हमारे पास रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस लिखा हुआ है, जैसे देखिए रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस में भी हमारे पास जैसे बेंजाइलिक हलाइड है, फिर बेंजीन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लग गया, मिथाइल ग्रुप की जगह मान लो बेंजीन रिंग लग गया, या फिर तीनों का तीनों बेंजीन रिंग लग गया, तो इसमें जो रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस है ये इंक्रीज करता रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप है, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो दैट विल बी मोर स्टेबल, राइट। यहाँ 2 फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, और यहाँ बस रेजोनेंस लग गया, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें द हाइलाइट्स गिव्स मेनली SN2, तो ये आपका SN2 देंगे, इसमें आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं दिखेगा, सो यू हैव 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। तो ये जो यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, इसी को बस यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। वैसे हैलाइड्स जो कि सिर्फ SN2 देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो कि कुछ हैलाइड्स है दैट विल मेनली गिव SN1, आपका 3 डिग्री हो गया, ये भी 3 डिग्री हो गया, या फिर जो आपका अलाइलिक है वो भी SN1 दे सकता है क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा दैट विल बी 3 डिग्री एज वेल एज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, राइट। नेक्स्ट है विच इज हलाइड्स विच में गिव आइदर SN1 और SN2, ये जो दोनों दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपका बेंजाइलिक हलाइड हो गया, ठीक है, ये भी आपका दे सकता है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा दैट विल बी 2 डिग्री कार्बोकेटायन, सो दिस इज बेसिकली दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, लेकिन 1 डिग्री होने के बावजूद यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है, इसलिए ये जो SN1 है वो ये दे रहा है। नॉर्मली देखो देखो जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था कि 1 डिग्री अगर हुआ या CH3X हुआ या CH3CH2X हुआ तो इसमें SN1 नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे CH3 की जगह क्या है फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये SN1 दे सकता है, ये ठीक है। फिर ये आपका जो है वो SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है बिकॉज दिस इज 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन में SN2 भी हो सकता है, और अगर ये कार्बोकेटायन बनाया तो ये कार्बोकेटायन बनाने के बाद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा। फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी अगर हम लोगों ने ले लिया तो ये भी SN2 दिखा सकता है, राइट, और SN1 तो दिखाएगा ही क्योंकि कार्बोकेटायन बनेगा तो फिर ये रीअरेंज हो सकता है, राइट। सो इन्हीं चारों में जो है हमें डिसाइड करना है कि SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, बिकॉज वन ऑफ द फैक्टर इज नाउ फेल्ड विच इज द फैक्टर ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करके देखना, है ना, और ये क्वेश्चन जो है हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, कल सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो फिर वी विल सी अबाउट द
सेकेंड फैक्टर विच इज़ द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। राइट, और इसके बेसिस पे फिर हम लोग ये भी डिसाइड करेंगे